دلکش لالپور اسکیم میں ضابطگیاں، فنڈز کے غلط استعمال، ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف۔ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن نے اہم اعتراضات لگا دیے۔ اسکیم میں 30 کروڑ کی لاگت سے فیصل آباد کے تاریخی مقامات کی تعزین و آرائش کرنا تھی۔ ضلع کونسل گمٹی، کیسری دروازہ، علامہ اقبال لائبریری، گھنٹہ گھر، گورا قبرستان، بھگت سنگھ ہاؤس کے تعزین و آرائش کے کاموں مبینہ طور پر فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔ گھنٹہ گھر پر فنڈز نہ لگ سکے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، گھنٹہ گھر پر فنڈز نہ لگ سکے۔ دلکش لالپور اسکیم بے ضابطگیاں، فنڈز کے غلط استعمال، ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کی جانب سے فیصل آباد میں دلکش اسکیم کے تحت فیصل آباد کے تاریخی مقامات گھنٹہ گھر، ضلع کونسل، کیسری دروازہ، گمٹی اور گورا قبرستان اور بھگت سنگھ سمیت دیگر جتنے بھی تاریخی مقامات تھے وہاں پر ہونے والے ترقیاتی کاموں پر فنڈز کے جو مبینہ طور پر غلط استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ اور ضلع کونسل فیصل آباد میں جو کنکریٹ سول ورکس، اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹر ورکس میں مبینہ طور پر ناقص کوالٹی کے مٹیریل کا استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ اور ایم این ڈی کی جانب سے تمام تر رپورٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیصل آباد کے جو مختلف مقامات، جو تاریخی مقامات ہیں، اگست 2021 میں نور الامین مینگل کے دور میں جو ہے ان کی منظوری ہوئی تھی، اور پیپرا قوانین سے ہٹ کر بھی 1 کروڑ سے زائد کی جو رقوم تھی وہ اضافی کنٹریکٹرز کو جو ہے وہ اوارڈ کی گئی۔ اور بات کریں تو فیصل آباد میں ضلع کونسل اور گمٹی، کیسری دروازہ، علامہ اقبال لائبریری میں مبینہ طور پر فنڈز کے غلط کا استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو علامہ اقبال لائبریری کے لیے 5 کروڑ کے فنڈ مختص تھے، گھنٹہ گھر کے لیے 7 کروڑ، بھگت عمران اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دلکش لالپور میوزیم اسکیم کے حوالے سے بے ضابطگیوں، فنڈز کے غلط استعمال، ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن نے اہم اعتراضات لگا دیے۔ اسکیم میں 30 کروڑ کی لاگت سے فیصل آباد کے تاریخی مقامات کی تعزین و آرائش کرنا تھی۔ ضلع کونسل گمٹی، کیسری دروازہ، علامہ اقبال لائبریری، گھنٹہ گھر، گورا قبرستان، بھگت سنگھ ہاؤس کے تعزین و آرائش کے کاموں مبینہ طور پر فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔ یہاں آپ کو بتائیں، فیصل آباد میں محکمہ صحت انتظامیہ نے نااہلی کی انتہا کر دی۔ لاکھوں کے اسٹریچرز، بیڈز، آپریشن ٹیبل، سائڈ ٹیبل کھلے آسمان تلے رکھ کے زنگ آلود ہونے لگے۔ بینچ، الماریاں اور دیگر فرنیچر گرد و غبار میں برباد ہونے لگا۔ اس وقت کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار۔ محکمہ صحت ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے آفس میں موجود ہوں، اور میرا کیمرامین آپ کو دکھائے تھے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ لاکھوں روپے مالیت کے اسٹریچرز، ویل چیئر اور اس کے ساتھ ساتھ بیڈز اور سائڈ ٹیبل جو کہ چارٹ یا مریض کے بیڈ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، دیگر اشیاء رکھنے کے والے سے وہ اس کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ کھلے آسمان تلے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بینچ بھی موجود ہیں، اور اس وقت اس کی حفاظت مناسب جو ہے وہ نہیں ہو رہی، جس کے سبب انہیں جو ہے وہ زنگ لگنا شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنا یہاں پہ جو ہے وہ گرد و غبار جو ہے وہ اس وقت جم چکی ہے، اور کوئی مناسب دیکھ بھال جو ہے وہ ان کی نہیں ہو پا رہی۔ اور اسی طرح اگر میرا کیمرامین ایمان آپ کو مزید دکھائے تو میں آپ کو یہاں پہ موجود باقی بھی سامان دکھاتا ہوں جو یہاں پہ اس وقت موجود ہے، اور اسے جہاں پہ منتقل کرنا چاہیے تھا علاج گاہوں میں وہ منتقل نہیں ہو سکا۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ جو تھی اس وقت فراہم کی گئی تھی حکومت سے کہ انہیں جو ہے وہ انہوں نے منتقل کرنا ہے اسٹریچرز کو اور بیڈز کو، اور کیونکہ اس میں آپریشن ٹیبل بھی ہمیں یہاں پہ جو ہے نظر آ رہے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ سارا کا سارا سامان یہاں پہ اس وقت موجود ہے، جس میں اسٹریچر شامل ہیں اور آپریشن ٹیبل شامل ہیں، اور انہیں جو ہے وہ علاج گاہوں میں منتقل نہیں کیا جا سکا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ فرنیچر دکھاؤں کہ یہ فرنیچر بھی جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت موجود ہے، اور بہت گندی حالت جو ہے وہ فرنیچر کی اس وقت ہوتی جا رہی ہے کہ اس کی مناسب دیکھ بھال جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے نہیں کی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ اگر الماریاں دکھاؤں کہ یہاں پہ الماریاں بھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ تھیں، جو کہ محکمہ صحت نے کھلے آسمان تلے جو ہے وہ اس وقت رکھ دیا، اور ان کا بھی جو ہے وہ کوئی والی وارث نہیں ہے، اور اس وقت کھلے آسمان تلے موجود یہ تمام عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ماریہ قتل کیس میں اہم پیش رفت، مقتولہ کا دوسرا بھائی شہباز اور بیوی سمیرہ بھی گرفتار۔ پولیس نے ویڈیو بنانے والے بھائی شہباز اور بیوی کو شامل تفتیش کر لیا۔ میاں بیوی کو عدالت پیش کر کے ریمانڈ لیا جائے گا۔ شہباز اور سمیرہ کے ڈی این اے کے نمونے بھی حاصل کر لیے گئے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ بالکل، ماریہ قتل کیس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ مقتولہ کے دوسرے بھائی شہباز اور اس کی اہلیہ
सुमेरा बीबी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह अब 4 अफराद पुलिस की हिरासत में है। फैसल, उसके भाई अब्दुल सत्तार को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था, जो मरकजी मुलजिम थे। शहबाज जो है वो इस कत्ल की वीडियो बनाता रहा, उसकी बीवी सुमेरा जो है वो उस कमरे में मौजूद रही, जिस पर पुलिस ने इनको छापे मारने के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है, शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तमाम इन चारों अफराद को जो है ढाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस राय का ये कहना है कि इन दोनों जो मुलजिम शहबाज और उसकी अहलिया के जो है वो डीएनए के हवाले से नमूने भी हासिल कर लिए गए। अब रिपोर्ट का भी वेट किया जा रहा है। तमाम गुज़िश्ता रोज मरकजी मुलजिम फैसल और उसके बाप अब्दुल सत्तार को जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था और जिस्मानी रिमांड लिया गया था। हम जराए का ये कहना है कि आज दोनों मियाँ बीवी को भी पेश किया जाएगा और जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। तमाम इस वक्त भी जो है वो चारों मुलजिमान के हवाले से पुलिस जराए हैं, उनका ये कहना है कि इनको शामिल तफ्तीश किया गया है। पहले मुलजिम शहबाज जो है उस बात का जो है वो इसरार करता था कि उसको मुदई बनाया जाए, लेकिन पुलिस खुद मुदई बनी थी। तमाम जराए का ये भी कहना है कि मकतूला की बड़ी बहन जो है उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाने की जो है वो इतलात मसूल हो रही कि उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जी अच्छा जी मुबशिर, ये भी बताइएगा वकील कामरान जफर ने वकालतनामा वापस ले लिया है, इस बारे में भी कुछ बताइए। जी बिल्कुल, इस केस के हवाले से जो शहबाज की तरफ से जो वकील थे कामरान जफर, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि शहबाज जो है वो मजलूम है, पुलिस इसके साथ तामुल नहीं कर रही है, ताहम उन्होंने अपना वकालतनामा जो है वो वापस ले लिया है। उनका ये कहना है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने जो तहकीकात की हैं उसके मुताबिक ये चारों अफराद मुबैना तौर पर जो है वो इन पर पुलिस उनको शामिल तफ्तीश कर चुकी है, पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसलिए वो उनका ये कहना है कि वो किसी भी जालिम के साथ नहीं चलेंगे। ताहम इस बात पर उन्होंने इस केस की जो वकालतनामा था वो वापस ले लिया है। जी मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद का इलाके में चोरों की फायरिंग से शहरी के कत्ल का ड्रॉप सीन। रिजवान टाउन के याकूब की बेटियों ने चोरों के गच्चे पर वालिद हवेली में मौजूद वालिद को इतला दी। वालिद ने भाई सलीम को कॉल करके चोरों का बताया और घर रवाना हो गया। सलीम भाई से पहले पहुंच गया, वापस निकलने लगा तो याकूब समझकर भाई सलीम को गोलियां मार दी। सलीम मौका पर दम तोड़ गया। याकूब और अहले खाना ने सलीम की मौत चोरों की फायरिंग से होने का ड्रामा रचाया। एसपी लालपुर डिवीजन रहमान कादिर 2 घंटे में हकायक तलाश करके याकूब को गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। फैसलाबाद चोरों की फायरिंग से शहरी के कत्ल का ड्रॉप सीन। भाई ही भाई का कातिल निकला, पुलिस ने 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। रिजवान टाउन याकूब की बेटियों ने वालिद को चोरों की इत्तला दी। वालिद ने भाई सलीम को कॉल करके चोरों का बताया और घर रवाना हो गया। सलीम भाई से पहले पहुंच गया और वापस निकलने लगा तो याकूब भी आ गया। याकूब ने चोर समझकर अपने ही भाई को गोलियां मार दी। याकूब ने चोरों की फायरिंग से मौत का ड्रामा रचाया। एसपी लालपुर डिवीजन रहमान कादिर फौरी मौका पर पहुंचे। 2 घंटे में याकूब गिरफ्तार कर लिया गया। आला कत्ल भी बरामद। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल टीचर पर एफआईआर का मामला। अहले इलाका का खातून टीचर के हक में एहतजाज। अहले इलाका का कहना है खातून टीचर पर तालिबा पर तशद्दुद का गलत इल्जाम लगाया गया, झूठी एफआईआर को खारिज किया जाए। दूसरी तरफ मुकदमा में दर्ज गवाह का भी वाकया से लाइल्मी का इजहार, वीडियो बयान भी सामने आ गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत। हाँ जी बिल्कुल, ये वाकया है लालिया का नवाई इलाका है चंगड़ा वाला, जहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की खातून टीचर कमर बीबी के खिलाफ तालबा की वालदा मुनव्वर बीबी की मुद्दत में थाना कांडीवाल के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि खातून टीचर ने मुबैना तौर पर तालबा को तशद्दुद का निशाना बनाया और हमसे बेजा में रखा और इस पर जो है एफआईआर दर्ज की जाए, जिस पर थाना कांडीवाल के अंदर खातून टीचर के खिलाफ एफआईआर का इंदराज किया गया। ताहम अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा है कि इस किस्म का कोई वाकया पेश नहीं आया और थाना कांडीवाल के अंदर खातून टीचर के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया। तो दूसरी तरफ मुकदमे के एक गवाह नजीर अहमद ने भी वीडियो बयान के अंदर वाकये से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा है कि वो ना मौके पर मौजूद था और ना वो उसको इसके वाकये का पता है। अजमत बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट के सरकारी आटा पॉइंट पर 10 किलो आटे का थैला मजीद सस्ता। 10 किलो आटे का थैला 70 रुपए कमी के बाद 1150 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1220 रुपए थी। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार।
कोर्ट में जो रिलीफ पर आटा फराहम किया जा रहा है उसकी कीमतों में मज़ीद कमी कर दी गई है। कल जो 10 किलो का आटा था वो 1200 का थैला दिया जा रहा था। आज 50 रुपये इसमें मज़ीद कमी की गई है और आज 1150 रुपये का ये 10 किलो का थैला हो गया है। परसों इसकी कीमत 1220 रुपये थी, जबकि 4 दिन पहले 1270 रुपये का फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन गुज़श्ता 2-3 दिन में इसकी तकरीबन 70 रुपये से ज़ायद फ़ी थैला कीमत में कमी की गई है। ख़रीदार लेके जा रहे हैं, हमसे भी बात करते हैं। कुछ सस्ता मिल रहा है, कोई कमी हुई है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करदा मैं ना इंतज़ामिया दा। कल तकरीबन आटा 1200, परसों 20 आ, कल 1200 आ, अज आटा 1150 हो गया है। असी शुक्रिया अदा करते हैं इंतज़ामिया दा, DC साहब, DPO साहब, सारे इंतज़ामिया साहबान दा। साडा गरीब आवाम तो यही चाहती है बई कोई 50-100 होर रैत हो जाए, जिमें जिमें करीबन माह रमज़ान शरीफ आ रहा है। सस्ता होना चाहिए जी, होना चाहिए। कोई फ़र्क पे है पूरे रमज़ान मुबारक से? जी पे है। वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद का जौहर कॉलोनी पार्क खस्ताहाली का शिकार, शहरी परेशान। शहरियों का कहना है अरसे दराज से यही सूरत हाल है, गंदगी के ढेर लगे हैं। सीवरेज का पानी पार्क में जमा होना भी मामूल बन गया। मुतल्लिका हुकाम से पार्क की अबतर सूरत हाल की जानिब तवज्जो की अपील कर दी गई। मजीद क्या तफसीलात हैं, मजीद क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जौहर कॉलोनी का पार्क जो है वो खस्ताहाली का शिकार है। ना सिर्फ जो पार्क के अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बल्कि पार्क के बाहर की तरफ भी अगर देखा जाए कूड़े के ढेर जो है वो लगे हुए हैं। पार्क के अंदर जो है रोज़ बरोज़ सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिसके बाद शहरी जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरी मेरे साथ मौजूदा हैं, इनकी इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा, पार्क की जो कब से ये सूरत हाल है? ये 1-2 साल हो गए हैं। बिल्कुल ये पार्क बहुत खस्ता हालत है। आप देख सकते हैं कि पानी जगह जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है, गंदगी के ढेर बहुत ज़्यादा हैं और PHA को चाहिए कि ये जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। ये देख सकते हैं आप, बेंच टूटे हुए हैं, घास कोई नहीं है इधर और पौधे वगैरह भी कोई नहीं है, ठीक है। इनको चाहिए कि जल्द से जल्द इसको ठीक करवाया जाए। और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल पीछे, ये बहुत खस्ता हालत है सब कुछ। जी बिल्कुल, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनकी जानब चलते हैं और इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? खवातीन और बच्चे जो हैं उनके लिए मसाइल आपने बताया था देखने में आते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि पार्क कोई सी भी सोसाइटी में हो वो एक कंफर्ट जोन का मुकाम रखता है और इसकी आप देख लें, ग्राउंड से अंदाज़ा लगा लें कि ग्रास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और ये देखेंगे इसकी कितनी खस्ता हालत है। तो जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि साल 2 अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। चिन्योट के सरकारी हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट न होने के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए साइलिन झंग आने लगे। मेडिकल सर्टिफिकेट के हसूल के लिए साइलिन कई मील सफर करने पर मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झंग में रश बढ़ गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, ज़िला चिन्योट में रेडियोलॉजिस्ट ना होने के बाइस मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के हसूल के लिए साइलिन जो है वो जंग आने लगे। मीलों दूर सफ़र तय करके जो है वो जंग आते हैं और यहाँ पर जो है वो घंटों इंतज़ार करने के बाद अपना मेडिको लीगल हासिल करते हैं। मेरे साथ कुछ साइलिन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा जी। एक तो हम नए इधर आए हैं और सफ़र भी बहुत ज़्यादा है और जो सफ़र वो हमने तय इधर किया उससे ज़्यादा इधर हमें तकलीफ़ हो रही है। बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, हमारी गुजारिश है जी। जी बिल्कुल, साइलिन का ये कहना है कि ज़िला में जो है वो रेडियोलॉजिस्ट की वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मंडी शाह जीवना के शहरी इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम। बुनियादी मरकज़ी सेहत में मेडिकल ऑफिसर की सीट 3 माह से खाली। मेडिकल ऑफिसर न होने से मरीजों को दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शहजाद हसाम से। जी शहजाद। आपके दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, सिर्फ दावों की हद तक महदूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी शाहजीवना के बुनियादी मरकज सेहत में, जहाँ पर डॉक्टर ना होने की वजह से शहरियों को काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना होता है। शहरियों को डिस्पेंसर से अद्वियात देकर उनको निज़ाम चलाया गया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना। मेरे शहरी में उनसे बात करें। सर बताइएगा, 3 महीने से यहाँ पर डॉक्टर नहीं, तो क्या कहेंगे? देखो जी, हूँ एडा बड़ा अस्पताल है, एडा बड़ा इलाका है, हूँ अगर डॉक्टर नहीं है, एक कंप्यूटर बैठा होंगे, अगर वो दवाई देंदा अपने को यानी कि मरीज का कोई मसला बनता है वो भी अगर इतने जो बाहर मरीज आंदा वो नहीं तो दवाई का नहीं लगती। नाल मैडिकल स्टोर या प्राइवेट डॉक्टर बैठे उन्होंने को दवाई लेनी है। अज तो साढ़े इलाके डॉक्टर कोई नहीं, अगर कोई पट्टी लवावनी है तो भी अस यानी कि किसी प्राइवेट
स्टोर तो जाके लवांगे उस तो आड़ के अगर सानू से डॉक्टर चाहिए। शहजाद हसाम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब के सरकारी स्कूलों में 8वीं जमात तक के तलबा का रिजल्ट है। स्कूल सतह के इम्तिहानात के नताइज के लिए तमाम सरकारी स्कूल्स में तकरीबात। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई थी कि 30 मार्च को तमाम स्कूल में रिजल्ट डे डिक्लेयर किया जाए और बच्चों को जो उनसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट ली गई उनके नताइज जो हैं वो दिए जाएं और उसके साथ साथ जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उनमें इनामात तकसीम किए जाएं। इस हवाले से आज तमाम गवर्नमेंट स्कूल में तकरीबें तकसीम इनामात का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल PMC कॉलोनी में, जहाँ पर जो तलबा हैं उनमें इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अतिया मुबीन भी मौजूद हैं, असातिज़ा भी मौजूद हैं, बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है। उससे बात करते हैं कि कितना ज़रूरी है और गवर्नमेंट में भी ये रुझान कि अब गवर्नमेंट स्कूल में भी तमाम स्कूल को इंस्ट्रक्शन थी कि वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात करें, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, स्कूल बेस्ड असेसमेंट का इनकाद किया गया था तमाम स्कूल्स में और मरकज़ लेवल पे एक तकरीब का इनकाद करना था जिसमें असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और दीगर अफसरान ने शिरकत करनी थी और इसी सिलसिला में आज PMC स्कूल्स में इस तकरीब का इनकाद किया गया है। SBA फाइनल टर्म के पेपर स्कूल्स में 27 तारीख तक जारी रहे। उसके बाद टीचर्स ने मार्किंग करके रिज़ल्ट बनाया और आज बच्चों के रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट का डे था और रिज़ल्ट डे मनाया गया है और तमाम बच्चों को जो है हौसला अफजाई की गई है, पोजीशन होल्डर्स को इनामात तकसीम किए गए। बिल्कुल, यकीनी तौर पर आज तमाम जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ये दिन मनाया जा रहा है रिजल्ट डे के नाम से, जिसमें गवर्नमेंट की खास इंस्ट्रक्शन थी। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।